Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very good evening. I'm Khatija Zishan, member of the core SDP team AMP and your host for today's session. On behalf of the AMP team, I welcome you all to the Career Guidance Seminar Phase 2. Today's topic is career in banking, finance and insurance. Before we start the talk, let's catch a glimpse of what AMP is all about. AMP stands for Association of Muslim Professionals Striving for Peace and Progress. AMP is a not-profit organization started in the year 2007, registered in India, USA, UK, and Australia. It has been serving our community in the field of education, employment, and empowerment. It has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030, inshallah. AMP's mission is to serve the underprivileged to benefit the nation and society as a whole. AMP's vision to be a model community which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. Some of the prominent achievements of AMP under the school development programs: 2,800 plus skill development lectures have been delivered, connected with more than 800 schools, 281,000 students were benefited, and more than 100 teachers training and parenting workshops were conducted. Employment Assistance Cell EAC organized 360 plus job fairs and job drives, which helped in the employment of 21,000 plus candidates. More than 200 employability trainings were conducted, and 17,000 plus degree students were benefited. Scholarships and self-employment: more than 800 higher education scholarships were sponsored, 860 towards orphans education. More than 400 families were benefited from this program. AMP's Resource Center has 660 plus career counselors and 2,500 students have been counseled. Awards and partnerships: 380 plus renowned educationalists connected and awarded, 50 partnerships including state governments, and 100 plus partner NGOs. In the year 2020, AMP launched new digital initiatives which include indiazakat.com, the indiamentors.com, and empowerjobs.com. Indiazakat.com is India's first Zakat crowdfunding platform where Zakat seekers and Zakat givers are unified. Its objective is to serve the needy. The indiamentors.com is a mentorship portal for students from different backgrounds to be mentored by esteemed members of the community. Students, please register at the indiamentors.com as mentees. It's free. You will be allotted a mentor to guide you with your studies. Empowerjobs.com is a free portal to help job seekers connect with the employers. It also offers skill training and employability training programs. AMP's reach: it has an on-ground presence of more than 140 active chapters in 26 states, 16 countries with 6,000 plus active members. It also has an online presence of 125,000 plus members and professionals connected on various social media platforms. To join AMP, visit www.ampindia.org/AMP. We also have a YouTube channel. If you have missed anything from this session or previous sessions, you can always go back and watch it over there. If you have any questions, please drop it in the Q&A box. We will be addressing it at the end of the session. We will be live on Facebook shortly. Now, I would like to introduce our distinguished speaker for today, Mr. Mohammad Faisal. He has more than 25 years of experience in the field of audit and finance and has worked for reputed export houses, holding responsible posts including that of finance controller and CFO. Also, he has experience as a visiting faculty for the CA foundations in a few institutions. Currently, he is working as a CEO of management consulting firm Kaizen Matrix. A very hearty welcome to you, sir, from the AMP team. Thank you. Over to you, sir. Thank you, Khadija ma'am. Assalamu alaikum. This is Mohammad Faisal.
And thanks Almighty Allah for giving me this opportunity, and I also thank AMP for giving me this platform to do something on my for the community at large. I am highly impressed by whatever AMP has been doing for a long time now, and they have impacted positively with so many. I've seen people around me being positively impacted. So I'm highly impressed, and I'm honored to be part of this group. Today, we are going to touch upon a very important career called banking, finance, and insurance. In financial terms, I mean, we call it BFI sector, which is a very important sector. और मुझे कहा गया है कि मुझे उर्दू में बोलनी है. I don't know how good my उर्दू is, फिर भी मैं कोशिश तो करूँगा इंशाल्लाह, बिकॉज हमें पैन इंडिया एड्रेस करना है. ये जो कोर्स है जो मैं कैरियर के बारे में बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर है. क्योंकि अगर आप ठाने मतलब जब से दुनिया शुरू हुई है, हिसाब किताब तो चलता ही है, और इसलिए जो भी नंबर्स में बात करेंगे वो उसका कुछ ना कुछ इसमें बैंकिंग फिनेंस में का कनेक्शन है. सो बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर है. अगर आप में नंबर्स के लिए कुछ इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए. मैं लेट मी पुट इट दिस वे. और जो हमें जो वक्त दिया गया है 45 मिनट्स का, बहुत कम वक्फा है, बहुत कम वक्त है इसमें इतनी बड़ी सेक्टर को डिस्कस करने के लिए. मैं एक ब्रॉड आउटलाइन दूंगा. मैं लेट मी टेक 5 मिनट्स. पहले आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया देता हूँ क्या है. इसके बाद हम सब्जेक्ट पे जाएंगे. उसके बाद जाहिर बात है हम लोग, जैसे मुझे कहा गया है कि वी हैव लास्ट सेक्शन इज फॉर Q&A ऑफ 15 मिनट्स. जी, तो मैं शुरुआत ये करूंगा कि हम लोग जो AMP कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में. मेरा एक मानना है, ख्याल है कि जब तक हम लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, इलिटरेट नहीं होंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, हमारा कौम ऐसे ही पीछे ही रह जाएगा. हम लोग कब तक ऐसे ही मतलब दूसरों को दोष देते रहेंगे, वील बी क्राइंग विक्टिमहुड. हम कब तक ऐसे ही हाथ में हाथ मलते रहेंगे, कहेंगे हुक्मरान को जिम्मेदार ठहराएंगे. ये बहुत दिन नहीं चलेगा. अब हमें ये एहसास होना है कि एजुकेशन इज द ओनली वे आउट. जब तक हम एजुकेशन में ध्यान नहीं देंगे हमारा कुछ नहीं होगा. और जहाँ तक आपकी ज़िंदगी का पहला जो डिसीजन, मेजर डिसीजन होता है, इसके बाद बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं आपको, लेकिन जो पहला मेजर डिसीजन होता है ये जो होता है ये एजुकेशन. खासकर जो 10th और +2 के बाद में जो आपको जो स्ट्रीम लेना पड़ता है, इसमें आपको एक मेजर डिसीजन लेना है. और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं फाइनेंस फील्ड का हूँ. मुझे ये आप लोग जानेंगे कि ये जानकर खुशी होगी कि अगर दूसरे स्ट्रीम को आप कंपेयर करेंगे, दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, जो मेडिसिन हो गया, मतलब साइंस हो गया, या आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, IT हो गया, इसमें जो आउटफ्लो फंड्स, जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है. जहाँ तक हमारे जो कॉमर्स ग्रुप का जो भी इवन प्रोफेशनल कोर्सेज लीजिए आप, CA ICM में बहुत कम खर्चा लगता है. वहाँ मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता. मेहनत तो करनी है. अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो आप बहुत कामयाब हो पाएंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएंगे आप इंशाल्लाह. सो मेरा ये दुआ है कि मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारे बच्चे हैं, मुसलमान बच्चे हैं खासकर, उन लोगों को ये फील्ड ज़रूर चुनी है और इसमें आपको कामयाब ज़रूर मिलेगा. बहुत सारे कहते हैं कि चलिए मैं CA का हूँ, इसलिए मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि CA बहुत टफ है, कर नहीं पाते हैं. बहुत मुश्किल है. तो कुछ जो भी आसान से मिलता है वो कुछ ज़्यादा नहीं ठहरता ना. आपको मेहनत तो करनी पड़ती है. मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता. जद्दोजहद करना पड़ता है. जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ ना कुछ हासिल नहीं होगा. और जो कामयाब होते हैं वो भी कोई अल्लाह का बंदा ही होता है. वो कोई आसमान से गिरा हुआ एलियन नहीं होता है. सो इसलिए मेरा एक मानना है कि अगर आप मेहनत करेंगे, आप जद्दोजहद करेंगे, आप में अगर सलाहियत है, आप में हिम्मत है, तो आप ज़रूर कामयाब हो पाएंगे इंशाल्लाह. और मुझे ये भी करना है कि देखिए, मैंने जब पहले ही से कह दिया था कि जो हमारा जो मुस्तकबिल है, इट इज़ कम्प्लीटली लिंक टू एजुकेशन. जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे हम ऐसे पीछे बिछड़े रह जाएंगे. अगर आप
हम लोग बहुत सारे कहते हैं कि हम अकलियत में हैं, हम लोग 25-20 या 25% बता रहे हैं कितने हैं हिंदुस्तान में, 20 करोड़ या 25 करोड़ जो भी हैं, हम अकलियत नहीं है, हम ह्यूज नंबर्स हैं, बिग नंबर्स, 25,000 20 नंबर 20% मे बी इज स्मॉल फ्रैक्शन, 1/3। अगर आप नंबर्स में लेंगे तो 20 करोड़ या 25 करोड़ बहुत नंबर है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर हम दूसरों के पास जिम्मेदारी नहीं छोड़ कर अपने खुद अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। मुझे ये इसमें मुझे कहना है कि मेरे वालिद साहब कहते थे कि जब सोसाइटी के पीछे आप भागेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जब आप कुछ हासिल कर लेंगे सोसाइटी आपके पीछे आएगा, वो भागते आएंगे आपके पीछे। सो इसलिए मेहनत कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अगर मैं जो भी छोटा बहुत मतलब जो वक्त मुझे जो दिया गया है उसमें जितना हो सके मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर इसके अलावा आपको उसको सवाल करना है, उसके बाद भी मेरा नंबर भी है, ईमेल भी दिया हुआ है इन्होंने, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आई बी मोर देन विलिंग टू हैप्पी टू हेल्प यू आउट पीपल। और मोटिवेशन के लिए मतलब ये जो था मेरा छोटा मोटा मोटिवेशन के लिए था, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि हमारे जो कौम के बच्चे हैं आगे बढ़े। ये ना कहें कि बहुत मुश्किल है, ये नहीं होता वो नहीं होता, बहुत हर कुछ हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कहता आपको खेल कूद में ध्यान नहीं देना है, खेल इसमें नहीं रहना, उसमें नहीं, टीवी नहीं देखना है, खेलना नहीं है, मैं ऐसे नहीं कहता। मैं खुद बहुत ऐसे इस चीज़ों में बहुत वक्त गंवाता था मैं, तो इसलिए ये जो है टाइम पास है, एजुकेशन जो है आपका वो मेन मेन होना चाहिए आपको। सो योर होल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन एजुकेशन। जो 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 आपका जो सोशल लाइफ है वो आपको पार्ट टाइम करना है, ये नहीं सोशल लाइफ फुल टाइम हो गया और जो अब तो सोशल लाइफ है मतलब वो फुल टाइम हो गया और एजुकेशन जो है पार्ट टाइम हो गया, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ये 3 सेक्टर हैं। लेट मी शेयर नाउ। हम ये कैरियर इन बैंकिंग, फिनेंस एंड इंश्योरेंस, क्या है बैंक, क्या है फिनेंस, इंश्योरेंस क्या है, इसके बाद इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, और इसके बाद इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड है बैंकिंग। बैंकिंग क्या है, हमने बैंकिंग बैंकिंग का स्लाइड दिखाइए। अगला स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन बैंकिंग। ठीक है, हम लोग हर वक्त हमें कुछ कभी ना कभी हम लोग सब बैंक गए हुए हैं ना, बच्चे लोग, आप बच्चों आप भी गए होंगे कभी ना कभी, आपने चेक डिपॉजिट किया होगा, कभी रिफंड किया होगा, कभी पैसे निकाले होंगे, कभी एटीएम से पैसे निकाले होंगे। ये क्या होता है, बैंक क्या होता है, बैंक का काम क्या होता है, मैं बेसिक समझाता हूँ बैंक को। जो जो सरप्लस अमाउंट मनी होता है हमारे पास, जो हमारे खर्च के अलावा जो पैसे होते हैं हम लोग बैंक में जमा करते हैं। और बैंक इसका क्या करता है, बैंक ये जो पैसे होते हैं हमारे पैसे, ये दूसरों को जब जिनको जरूरी है, जरूरी पड़ती है बिजनेस करने के लिए, एजुकेशन के लिए, घर बनने के लिए, उन लोगों को लोन देते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट कमाते हैं। मतलब ये ऐसे ही बिजनेस एक्टिविटी बढ़ता है बैंकिंग का बेसिक ही है। जहाँ से एक्सेस हुआ, लिया, सेव किया, हम लोग सेव करने के रखते हैं, वो लोग ये बिजनेस में लगाते हैं, इंडिविजुअल्स को देते हैं, एंटिटीज को देते हैं, हर एक को देते हैं, पब्लिक सेक्टर को देते हैं। यही बैंकिंग का एक्टिविटी है। और बैंक आज के जमाने में, जो पहले तो था, जो बैंक का काम था बहुत मुतहद, मतलब छोटा एक सेक्टर होता था, जब डिपॉजिट कर देंगे तो चेक डालेंगे, पैसे निकालेंगे, जो भी इंटरेस्ट को लोन देते थे। आज जो ग्लोबल इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया है। आपने देखा होगा कि पहले तो थे बहुत सारे छोटे, बहुत कम बैंक्स देखे होंगे हम लोग, मोस्टली नेशनलाइज्ड बैंक्स देखे होते थे। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। हमने 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 क्या देखा, कभी स्टेट बैंक देख लिया, कभी इंडियन बैंक देख लिया, कभी कैनरा बैंक देख लिया, लेकिन नहीं, हम ना जो बैंक बैंक के बारे में है, बैंक का जो स्लाइड है, बैंक का स्लाइड है, हाँ इसके बाद का वाला स्लाइड दिखाइए तो, बैंक नहीं, इसके बाद का बैंकिंग का है। अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ। आज अब अगर आप देखेंगे तो कितने सारे बैंक हैं आप आपके पास पास, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी, इतने इंटरनेशनल बैंक्स हैं आज, प्राइवेट बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं। इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी जो है बैंक्स में बहुत ज्यादा है। आपको ये, हाँ दिखाई तो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही
समझा लूंगा। डोंट, इट्स ओके। बैंक में जो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत होते हैं, देखिए, हाँ वही वही दिखा दीजिए आप। हमने जो जो आपने जस्ट शो किया था वो अब बता दीजिए। ठीक है, बैंक में जो अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारे हैं, और ये हम ये बैंक, फाइनेंस और इंश्योरेंस को एक सेक्टर में क्यों मानते हैं? क्योंकि इसको जो क्वालिफिकेशन होता है, इन तीनों का एक ही होता है। थोड़ा मतलब ये कम बीकॉम कर लिया, कभी सीए कर लिया, इसके बाद थोड़ा बीकॉम के बाद बैंक आप जा सकते हैं, अगर सीए कर ले तो मल्टीनेशनल बैंक में जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं, लेकिन इसमें बैंक में भी कर सकते हैं, फाइनेंस में भी कर सकते हैं, और इंश्योरेंस में कर सकते हैं। ये तीनों की जो क्वालिफिकेशन है, इस जो क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन है, सेम है, फाइनेंस के हैं, इसीलिए हम लोग इनको एक ही सेक्टर में रखे हैं बैंक के लिए। अब देख, बैंक में अपॉर्चुनिटी क्या होता है, बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं, जो बड़े जमा पूंजी होते हैं, उनके उनके फंड्स को मैनेज करते हैं, उनको शेयर में डालना, उनको कहाँ ये करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो समझाते हैं। बाद में फॉरेन एक्सचेंज का हो गया, फॉरेन एक्सचेंज आपको जो आप डॉलर्स है, पाउंड्स है, आपको एक्सचेंज कैसे करते हैं उसके बारे में समझाते हैं। ऐसे ही बैंक में मैनेजर्स का होता है, रिलेशनशिप मैनेजर का होता है, बैंक में ऑडिटर्स होते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, बजट बनता है, ये सब बैंक में अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारे काम हैं जो बैंक में आपको आसानी से जॉब, अगर आप मेहनत करके जो बेसिक हैं, जो बीकॉम है इस करके, आप बीकॉम बीए कॉर्पोरेट है, और बहुत सारे बैंक के डिप्लोमा कोर्सेज भी आते हैं, अगर वो आप कर लेंगे तो आपको बैंक में एक अच्छा करियर बन जाएगा। आप शुरुआत में जो क्लरिकल, अगर आप क्लर्क से शुरू करते हैं, अगर दूसरे आप इसके बाद, बहुत बैंक में एक एडवांटेज ये होता है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स इन बिटवीन होते हैं, जो इंटरनल होता है, जो खासकर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में, तो जो मल्टीनेशनल बैंक में ऐसे कुछ होता नहीं। मल्टीनेशनल बैंक में एंट्री लेवल ही जो क्वालिफाइड होते हैं उन्हीं को लेते हैं। जो जहाँ तक पब्लिक सेक्टर बैंक का है, उन लोग खुद का वो मतलब बैंक का एग्जाम्स होता है अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजुएशन, इसके बाद ये सब मिल जाता है, मतलब उसके बाद जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको प्रमोशन भी मिल जाता है, बहुत अच्छा करियर बनता है बैंक का। इसके बाद बैंक का हुआ, तो मैं उसके बाद बैंक के, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम ना, बैंक के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और एग्जाम्स क्या है लिखा हुआ है, देखिए तो क्वालिफिकेशन लिखा है ना बैंक के लिए। ये जो है, ये जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के लिए आफ्टर 12th, बीबीए है, बैंकिंग अकाउंटिंग का होता है, बैचलर्स इन बैंकिंग फाइनेंस है, बैचलर्स इन फाइनेंस इन अकाउंटिंग है, बीएफएम है। ये पूरे यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं, थोड़े जो नॉर्थ के यूनिवर्सिटी में थोड़े बहुत हैं, साउथ की यूनिवर्सिटी में यहाँ बीबीए होता है, बीकॉम होता है यहाँ, और इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा एग्जाम्स भी हैं जो बैंकिंग के लिए चलता है। और बहुत ये जो एग्जाम्स हैं ये सब आपके +2 के बाद से होगा। और बहुत सारे थोड़े बहुत पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो +2 के बाद जो थोड़े बहुत एग्जाम्स रखते हैं, लेकिन उसका एलिजिबिलिटी एज जो है 21 साल का होता है। अगर आप 18 साल में +2 पास कर लेंगे तो 3 साल तो बर्बाद हो जाएगा यूं ही, इसलिए बेहतर है कि आप ग्रेजुएशन कर लें, और इसके बाद जो ये जो ग्रेजुएशन मतलब जो एग्जाम्स हैं, बैंकिंग एग्जाम्स अगर आप लिखेंगे तो उस क्लरिकल लेवल का जॉब तो आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद जो आप प्रमोशन के लिए एग्जाम्स लिखते हैं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, किसको कहते हैं, क्या है फाइनेंस, और बैंक और फाइनेंस का रिलेशनशिप क्या है? बैंक जो है फाइनेंस में डील करता है, लेकिन फाइनेंस जो है, ये जो है एक बड़ा बड़ा टर्म है, फार बिगर टर्म देन बैंक। बैंक इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री, समझे आप? बैंक जो होता है, जो फाइनेंस सेक्टर में एक सेक्शन है। फाइनेंस जो है हर जगह है, हर जगह फाइनेंस होता है, सही समझे आप? एक छोटे दुकान में भी चले जाएंगे जो अकाउंट्स लिखता है उसको फाइनेंस कहते हैं। जो चिट्टा बुक या जो क्या कहते हैं, जो चिट्टा बुक लिखता है दुकान में, हर एक छोटे मोटे जो भी लिखते हैं, हर चीज हर बिजनेस में फाइनेंस का लगा होता है। सी लेट मी गो थ्रू डेफिनेशन है। Finance is broad term that describes activities associated with banking, leverage, debt, credit, capital markets, money, and investments. Basically, finance represents money management and process of acquiring needed funds. Finance also encompasses oversight, creation, and study of money, banking, credit, investments, assets, liabilities that make up financial segments.
जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस में बहुत सारे करियर हैं, इतने ज्यादा करियर हैं आपके पास, आप बता ही नहीं सकते। मतलब मल्टीनेशनल फाइनेंस है, इंटरनेशनल फाइनेंस है, छोटे छोटे दुकान में अकाउंटेंट्स का है, ऑडिट का है, बहुत बढ़िया है फाइनेंस के लिए। अगर आप फाइनेंस का जो मेन कोर्स, अब अगर मैं मेन कोर्स बताऊंगा तो सीए बीकॉम के साथ अगर शुरू करेंगे तो बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये ये शायद मैंने कहा जो आपको, जो अगर दूसरे आप प्रोफेशनल कोर्सेज में कंपेयर करेंगे तो फाइनेंस का जो प्रोफेशनल कोर्स है बहुत इकोनॉमिकल होता है। जो पे बैक पीरियड, जब जो इन्वेस्टमेंट लगा होता है जो करियर में, बहुत जल्द आप कमा लेते हैं। अब देखिए, अब एक डॉक्टर के पढ़ाई के लिए भी 1 करोड़ 50 से 60 लाख तो बन ही जाते हैं कम से कम। अगर आप मेरिट में जाएंगे तो भी 30-40 लाख तो लग जाते हैं। कितना कमा लेते होंगे एक डॉक्टर? 1 लाख तो कमाते होंगे महीने में, 30-40 महीने तो लग जाते हैं ये पैसे वापस आने में। लेकिन जहां तक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, हार्डली 1.5-2 लाख का खर्चा निकलता है 4-5 साल में। अगर आप 30-40 हजार महीने में अगर शुरुआत से कमा लेंगे तो 6-7 महीने में आपका तो जो जो लगा हुआ पूंजी है वो बाहर में आ जाता है। आपको यू रिटर्न, यू गेट ऑल द बैक मनी बैक। सो यू लॉट बेटर सिक्योर्ड करियर फाइनेंस का जो करियर है। और फाइनेंस में बहुत सारे हैं, बहुत सारे करियर बनते हैं। अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है, फाइनेंस में है जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। अगर बैंक में भी जा सकते हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी में है, आप खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं, टैक्स प्रैक्टिस, टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं। आपने आपने बहुत सारे देखे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब ये सवाल ये है कि आपको फाइनेंस करियर क्यों चुनना है? Why opt for a finance career? The finance industry is one of the most dynamic industries with constant innovations and growth. जहां तक फाइनेंस इंडस्ट्री है वो हर दिन कुछ ना कुछ आगे बढ़ते ही है, कुछ ना कुछ नए इजाद होते हैं। और ग्रोथ भी जो है फाइनेंस करियर में बहुत ज्यादा है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं आप। द सेकंड पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मार्केट्स, टेक्नोलॉजी advancements, business friendly laws, regulations have paved the way for financial progress in exact. जो जो फाइनेंस का इंडस्ट्री है, इट इज नॉट अ वन टाइम, अगर पढ़ लिए तो वहां तक खत्म नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो हर रोज कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। फाइनेंशियल रेगुलेशन में चेंज होते हैं, बिजनेस चेंज होता है, इंटरनेशनल बिजनेस। आज का जो बिजनेस है ये इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, हम लोग ग्लोबल इंडस्ट्री में है। सो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए। देन with the with the ongoing extension of companies in new area or large geography, the demand for finance professional बहुत ज्यादा है। फाइनेंस का जो डिमांड है, अगर आप दूसरे इंडस्ट्री में देखेंगे तो मैं इंजीनियरिंग का लूंगा, मैं मुझे मतलब मुझे कंपेयर करने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फिर भी कंपेयर करने के लिए बोलूंगा। तो कितने सारे जो इंजीनियर्स हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, या सही काम नहीं मिल रहा है, कुछ इंजीनियरिंग करके कुछ और कर रहे हैं। लेकिन जो फाइनेंस का जो करियर है, अगर आप सही मानों में सही रास्ते में जाएंगे तो कोई फाइनेंस वाला जो कोई और इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो डिमांड है, जो सप्लाई है, उससे ज्यादा डिमांड है। अगर आप अब समझिए कि साल में 500 से 600 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट होता है 4 से 5 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट हर साल जरूरी पड़ती है। सो शॉर्टफॉल है, सो डिमांड ज्यादा है, जो पैसे भी ज्यादा बना पाते हैं, समझे? तो देन constant growth opportunities with the finance industry provides illustrates why finance is an alternative course option, so career option, sorry. So आपको ये बिल्कुल याद रखिए कि मतलब इससे अच्छा करियर कोई हो ही नहीं सकता। बैंकिंग का तो है ही है, लेकिन जो फाइनेंस का करियर है मेरे ख्याल से कहीं भी अब ये नहीं कि बस आप फाइनेंस करियर कर लीजिए, मतलब फाइनेंस का जो एजुकेशन हुआ, सीए हुआ, आईसीएम हुआ, जो भी है, आप पढ़ के यही काम करनी है। आपको कहीं भी चले जाइए, आप सऊदी, मिडिल ईस्ट में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए। और हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज का जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पूरे यूरोप के साथ कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है उनका। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो वहीं भी जाके कहीं भी काम कर सकते हैं, दुनिया में कहीं कोने में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको लिखा है क्या है फाइनेंस का करियर। ये तो आपको जॉब वेरिएड करियर पाथ्स हैं, बहुत सारे हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होता है, चैलेंजिंग जॉब्स मिलते हैं, और फाइनेंशियली बहुत रिवॉर्डिंग करियर है। जो पैसे कमाने का जो
ऑप्शन होता है, जो चांस होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज मिलता है फाइनेंस में बहुत ज्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए तो फाइनेंस करियर के लिए आपके लिए ओपनिंग मिल ही जाएगा। ठीक है, आफ्टर 12th एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, सीए का है, इसके बाद है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, देन बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए और बी आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स, ये जो है ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, आईसीएम में जो ऑटोनोमस बॉडी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो है प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ओके, सीए का जो मैं बेसिक सीए का दिया उन्होंने, हमने वो है सीए आप सीए का डिटेल दिया था, कोर्स डिटेल जो है। पहले जो था ग्रेजुएशन के बाद सीए करने का ऑप्शन था। अब जो है अगर आप +2 करने के बाद अगर आप सीए करना चाहते हैं तो सीपीटी करना है, जो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं इसको। बहुत मतलब मैं ये सीए में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ कि मतलब इससे अच्छा कैरियर नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए, मेहनत करने के बाद अगर बहुत रिवॉर्डिंग होता है ये कैरियर। सीपीटी बोलते हैं जो +2 के बाद लिखते हैं। अब इसके बाद जो है आईपीसीसी बोलते हैं, उसके बाद सीए फाइनल का होता है। सीपीटी होता है, ये 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको सिर्फ 200 मार्क्स में 100 मार्क्स अगर ले लेंगे तो नेक्स्ट लेवल को जाना है आईपीसीसी। इसमें होता है 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो प्रीवियसली इसको इंटरमीडिएट कहते थे, अब आईपीसीसी कहते हैं। इसमें 7 पेपर्स होते हैं जो 100 मार्क के होते हैं, और 50% लेना होते हैं आपको नेक्स्ट फाइनल के लिए। सो मतलब 350 मार्क अगर आप ले लेंगे तो फाइनल पहुंच जाएंगे। फाइनल में वैसे ही 8 पेपर होते हैं, 8 इंटू 800 मार्क्स, और आपको 2 ग्रुप में मिलता है 400 इसका 200 अगर ले लेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। इतना आसान भी नहीं है, मैं बहुत आसानी से बताऊंगा, मगर अगर मेहनत करेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल आपको, अगर मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मेल भी दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे। हमें जी ठीक है, अब इंश्योरेंस के लिए चल जाते हैं, टाइम भी नहीं है, बहुत कम है हमारे पास टाइम इंश्योरेंस का। इसमें ये जो तीन है, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस, इसमें मेरा मानना है कि इंश्योरेंस में इतना ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये भी सेक्टर है, ऑप्शन है आपके लिए। इंश्योरेंस में क्या होता है, आप लोग अपने कंटिजेंट लॉस, अगर आप समझते हैं कि कुछ हमारा नुकसान होगा बारिश से, तूफान से, हेल्थ का, एक्सीडेंट का, इसलिए हम लोग इंश्योरेंस कंपनी में कुछ प्रीमियम भरते हैं। अगर कुछ ना कुछ खुदा न खासा हो जाए तो उसका मुआवजा वो लोग बनते हैं, इसी को इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत सारे बड़े इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और इंश्योरेंस जैसे फाइनेंस और बैंकिंग में बहुत सारे मल्टीनेशनल्स हो रहे हैं, वैसे इंश्योरेंस में भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इसलिए ऑप्शंस तो हैं बहुत, लेकिन फिर भी जब अगर बैंकिंग और फाइनेंस को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत कम ही होगा। अगर आप इंश्योरेंस का ले लेंगे तो ओरिएंटल इंश्योरेंस है, एलआईसी है, आपने देखा होगा, वो जो हेल्थ का इंश्योरेंस करते हैं। अगर अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स में देखेंगे तो बजाज है, आज कोटक महिंद्रा है, स्टार हेल्थ है, बहुत सारे हैं जो हेल्थ का करते हैं। एक्सीडेंट का होता है, लाइफ का होता है, यहाँ तक के बिजनेस लॉस का होता है। तो इंश्योरेंस में भी एक ऑप्शन तो है आपके पास। ठीक है, इसमें भी अगर आप +2 के बाद ग्रेजुएशन करेंगे तो ऑप्शन होगा। और बहुत सारे जो प्राइवेट में भी जो एजेंट होते हैं, उससे थोड़ा बहुत, अगर आप इंश्योरेंस के बारे में डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स भी होते हैं जो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, जो किसी कहीं नौकरी नहीं करते, वो जो इंश्योरेंस भरने वाले होते हैं, उनको इंश्योरेंस और कंपनी और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में लिंक होते हैं, उनको एजेंट कहा जाता है, इंश्योरेंस एजेंट करते हैं। वो लोग भी आजकल बहुत कमा रहे हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग गुड मनी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, हमें उसका इंश्योरेंस जो इसमें जो कोर्सेज किया है, व्हाई ऑफर इंश्योरेंस करियर, क्यों? बिकॉज इट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू execute ourselves. Insurance sector is one of the fastest growing sector in India, and career growth in insurance companies is also excellent. A sector with less competition for dealing and देखिए इसमें भी ये तो कहते हैं कि बहुत सारे हैं, मतलब मेरा फिर भी यही है, या कोई सवाल कर रहा है?
Hello. Here. I think we have completed the session now. जितना हो सके मैं कवर किया करने की कोशिश की है मैंने. चलिए थोड़े क्वेश्चन आंसर अगर कुछ किए हुए हैं तो let's see. Thank you, sir. We will Yeah. take the questions now. Uh, the first question is, being a Muslim, we didn't get job in banks. Then what should we do if we are willing to do? Khushbu, can you please make it clear the question? No, can I have the question again? The question is a bit confusing. She says, being a Muslim, we didn't get job in banks. Then what should we do if we are willing to do? No. The question is, I mean, whether being a Muslim, whether they want to do this banking job or not, is it? If that because just because you are a Muslim, I don't see you're not getting a chance in a bank, because no bank says that because you are a Muslim you are not allowed to work here. At least I've seen so many top level people working in banks with big banks, big multinational banks. So I don't see in spite. I mean, I had to tell you something. Why do we consider banks as only as Indian banks? There are Sharia compliant banks where finance works. अगर आप ये जो फाइनेंस का कोर्सेस करेंगे तो बहुत सारे हम लोग में हैं जो, मतलब मैं इन लोगों को गलत नहीं कहूंगा, जो कहते हैं कि हमें बैंक में या इंश्योरेंस में या फाइनेंस सेक्टर में काम नहीं करना क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट का जो बिजनेस होता है. मुझे आप ये मैं कहते हुए बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे जो हैं शरिया कंप्लाइंट फंड्स आ रहे हैं, शरिया कंप्लाइंट बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स हैं. इवन अगर आप यूरोप में या मलेशिया या इंडोनेशिया में चले जाएंगे, श्रीलंका में चले जाएंगे, तो बहुत सारे मल्टीनेशनल बैंक्स हैं जो शरिया कंप्लाइंट फंड्स में काम करते हैं, जो शरिया बेस्ड फंड्स हैं. इसलिए ये नहीं कि अगर आप नहीं करनी है तो बिल्कुल नहीं है. आई रेस्पेक्ट दैट, बिल्कुल सही है अगर आप नहीं करना चाहते हैं बैंक. मगर अगर ये कहना चाह रहे हैं कि आप बिकॉज यू आर अ मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम हैं इसलिए जॉब नहीं मिल रहा है, मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारों को देखा है जो टॉप पोस्ट पे काम कर रहे हैं बैंक्स में. जी. Yes, I agree Hope with I am that. clear. Hope I am clear. Yeah, it's clear, sir. I agree with that because even I have seen a lot of people working in the banks in a high Yeah. position. So the next question is, can you brief us on competitive exams related to these fields? जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, फाइनेंस का, मैंने पूरा बोल दिया था. जो टॉप एग्जाम है तीनों सेक्टर के लिए, अगर बैंक या इंश्योरेंस फाइनेंस का दो भी ले लेंगे तो एक तो होगा प्रोफेशनल कोर्स में, एक तो होगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का कंडक्ट करता है, जो ऑटोनोमस बॉडी है. जो सेकंड है ICMA, जो ICWO कहा जाता था उसको ICMA कहते हैं, आज इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी होता है. ओके, ये दो कोर्स जो हैं प्रोफेशनल कोर्सेज हैं. इसके अलावा जो ग्रेजुएट कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, BBA है, BCom है, BA इकोनॉमिक्स है, जो आप ये फाइनेंस में डील करते हैं, और थोड़े बहुत डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं. और इसके अलावा हम लोग टच नहीं कर पाए क्योंकि वक्त तो बहुत कम है हमारे पास. MBA भी है, MBA फाइनेंस करने के बाद भी आप फाइनेंस कर सकते हैं. बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो MBA फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उससे भी है. अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो बहुत जो बड़े पोस्ट होते हैं, उहदे होते हैं, वो IRS से लेते हैं. मतलब जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें से जो IR रेवेन्यू कैडर के जो होते हैं, IRS के होते हैं, उनको दिया जाता है रेवेन्यू में, जो पब्लिक सेक्टर में है. जी. Okay, thank you, sir. Next question. Can you tell us about the scholarships available for these fields? देखिए, जहाँ तक स्कॉलरशिप का सवाल है, CA ICT में बहुत कम है. बिकॉज देखिए, अगर आप दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज को ले लेंगे तो इतना खर्च होता नहीं है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए. इसलिए मतलब स्कॉलरशिप का इतना जरूरत भी नहीं पड़ता. मतलब अगर प्राइवेट स्कॉलरशिप्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स का सवाल है, बहुत कम है, क्योंकि खर्च भी बहुत कम लगता है. यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल कोर्सेज होते हैं फाइनेंस के. Okay, thank you, sir. So next question, what are the varied career paths in finance? There was a slide आपके presentation में एक था. जी.
So अगर आप you can as a finance you can be an accountant. आप accountant का काम कर सकते हैं या top accountant का काम कर सकते हैं. You can work as an auditor. फाइनेंस कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी में ऑडिटर का जब जॉब होता है वो करते हैं. आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग करना पड़ता है, कर सकते हैं. टैक्सेशन कर सकते हैं, टैक्स ऑडिट कर सकते हैं. बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. अगर आप प्राइवेट, आप खुद से भी करना सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कंपनी में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स में जा सकते हैं. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है फाइनेंस के, बहुत सारे हैं. okay. शायद ही कोई और प्रोफेशन को उसमें इतना सारा आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा जितना फाइनेंस में है. क्योंकि फाइनेंस जो है हर सेक्टर, जो भी आप, ठीक, अगर आप दूसरे सेक्टर में ले लेंगे तो एक दूसरों का जो इंटरकनेक्टेड बहुत कम होगा. लेकिन आप जो भी सेक्टर ले लीजिए, फाइनेंस का तो कनेक्शन होना ही है. आप ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, IT ले लीजिए, फाइनेंस तो है ही है. सो आपको आप देखिए, अब अगर IT इंडस्ट्री में है जो कैश हैंडल करते हैं, बिजनेस, मतलब जो उसका बड़े अकाउंटेंट्स होते हैं, जो CEO होते हैं, CFO, बहुत सारे फाइनेंस के ही होते हैं. IT जो, इवन जो IT इंडस्ट्री में जो टॉप पोस्ट होता है वो IT प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं. मैंने देखा है बहुत सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्हीं को CFO या CEO बनाते हैं. Okay. जी. Attendees, if you have any other questions, please type it in the Q&A box. I'll move on to the next question. What does underwriting mean? बैंकिंग में अंडरराइटर का मतलब क्या काम होता है? अंडरराइटर का ये है कि अगर आप एक शेयर में, बहुत सारे जो शेयर्स में मल्टीनेशनल्स में जो पब्लिक के में जाते हैं वो लोग नहीं कर पाते. मतलब जो डायरेक्ट, ये अंडरराइटर्स जो है ये गारंटी देते हैं कंपनी को कि हम लोग इतना शेयर सेल कर सकते हैं. मार्केटिंग, दे डू मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग. ओके, इनको मार्केटिंग करना है. ये इज ए कंपनी, वी वांट्स टू गो पब्लिक. उन लोगों को 10 करोड़ चाहिए होता है, वो लोग 1 लाख शेयर बेचना है. ये जो अंडरराइटर होते हैं ये कहते हैं कि हम लोग बेच के देंगे. अगर शॉर्टेज हो गया, इसके लिए उसको कमीशन मिलता है. अगर वो सेल करके दे देंगे तो उनके लिए कमीशन मिलता है, जो यही अंडरराइटर का काम होता है. Thank you, sir. The next question is, apart from degree courses, what are the skills and talents needed to work in the insurance sector? जहाँ तक इंश्योरेंस सेक्टर, टू बी फ्रैंक विद यू, मुझे आइडिया नहीं है, इतना ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मैं उस सेक्टर का नहीं हूँ. लेकिन अदर देन नॉर्मल फाइनेंस का जो स्किल है, उसका मतलब उसका कुछ स्पेशल स्किल नहीं होनी. जहाँ अगर आप एजेंट हैं, अगर आप खुद का, मतलब खुद का एजेंसी कर रहे हैं, आपको पॉलिसी बेचना है, बेच के कमीशन लेना है कंपनियों से, तो आपको अच्छा इंटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा से होना चाहिए, आपको जो दूसरों से ताल्लुकात अच्छे होने. दैट्स इट. अगर आप मैंने बहुत देखे हैं जो छोटे तबके, मतलब जो मॉडेस्ट बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन दे आर मेड अ गुड कैरियर आउट ऑफ बीइंग एन एजेंट, LIC एजेंट और व्हाटएवर, ऑल हेल्थ एजेंट्स, ऑल इंश्योरेंस एजेंट्स, सॉरी, दे आर मेड अ गुड कैरियर आउट ऑफ इट. जो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, they have been a successful, they have made a successful career of this. जी. Okay. Next question, what are the core skills we need to ace the future finance careers? Varun, can I have this question again? Repeat. What are the core skills we need to ace the future finance careers? फ्यूचर के लिए नहीं, कभी भी यही है, नंबर्स जाननी है. मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स. फ्यूचर या पास्ट, इसके कुछ चेंजेस नहीं होने वाला. फाइनेंस के लिए वही स्किल्स, वही चाहिए था, वही है. आपको नंबर्स में इंटरेस्ट होने चाहिए, एनालिटिक्स होना चाहिए, तो आप यू कैन बिकम सक्सेसफुल. यू कैन बिकम सक्सेसफुल एनी पार्ट ऑफ फाइनेंस. बहुत सारा है फाइनेंस में. जी. Okay, I think that's all the questions we have. Today's attendees, I think they are very shy to ask questions. Many questions from them, and that's it for now, sir. That's all. We have covered all the questions so far. Thank you. Thank you, sir. It was Thank you, indeed a very comprehensive I session. again thank my AMP for giving me this opportunity. Hopefully we'll have a long-term relationship, and I believe that every one of us have to contribute something to the society at large. हमें कुछ ना कुछ, बहुत कुछ ले लिया हम लोगों ने, हमें कुछ देनी है. It's time for us to give something back, and I salute all those AMP people who have done a fantastic job for a period of very short time. They have made a big name for themselves. Hope Allah bless them. Thank you, sir. Inshallah.